بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، نیو جوڈیشل کمپلیکس ملتان مسائل کا گڑھ بن چکا ہے۔ سہولتیں ہیں اور نہ ہی صفائی کا مناسب انتظام ہے۔ وکلاء کہتے ہیں اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود نیو جوڈیشل کمپلیکس بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ نیو جوڈیشل کمپلیکس ملتان مسائلستان بن گیا۔ سینئر وکلاء کا کہنا تھا کہ اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود عمارت بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی، جبکہ صفائی کے بھی ناقص انتظامات ہیں۔ تقریباً 300 سے زائد وکلاء پورے پنجاب سے، سندھ سے ڈیلی نیب کے کیسز میں اور مختلف کیسز میں متیتل پیش ہوتے ہیں، لیکن وہاں متیتل جس پہ اربوں روپے خرچ کیا گیا تھا مسائلستان بنا ہوا ہے۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ نیو جوڈیشل کمپلیکس میں بار روم، لائبریری اور کینٹین بنائی جائے۔ سینکڑوں وکلاء اور سائلین کو روزانہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ وہاں پر بار روم ہے، نہ ہی وہاں پر جو ہے کوئی کینٹین ہے، نہ ہی ان کی گاڑیوں کے لیے کوئی تحفظ ہے، اور نہ ہی ان کا جو ہے وہ کچھ ایسا پتہ لگتا ہے جیسے کہ وہ کہاں آ گئے ہیں۔ وکلاء ویلفیئر ایسوسی ایشن نے نیو جوڈیشل کمپلیکس میں سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ پریس کانفرنس میں سینئر وکلاء نشاط احمد صدیقی، شیخ فیضان، اصغر علی لودھی، شکیلہ کوثر اور عتیق ملک موجود تھے۔ کیمرہ مین عظیم ساگر کے ساتھ مہار عمران نواز، ملتان۔ ادھر رحیم یار خان انتظامیہ کی نااہلی، سیوریج کے ناقص انتظامات ہیں۔ حاجی احمد کالونی کا مصروف چوک کچروں کے پانی میں ڈوب گیا۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ وہ 2 سالوں سے سیوریج مسائل کا شکار ہے۔ رحیم یار خان میں انتظامیہ کے گرین اینڈ کلین پنجاب مہم کے بڑے بڑے دعوے ہوا ہو گئے۔ حاجی احمد کالونی کا مین چوک جوہر کا منظر پیش کرنے لگا۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ وہ 2 سالوں سے سیوریج مسائل کا شکار ہیں۔ تعفن کے باعث جینا مشکل ہو گیا۔ دیکھ لیں آپ سامنے سال ہو گیا تقریباً، کوئی بھی اس کا پانی تو ایسے رکا ہی رہتا ہے نا، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کو متعدد بار درخواستیں دی لیکن سنوائی نہ ہوئی۔ عملہ صرف برائے نام کام کرتا ہے۔ بہت سارے مشکل ہیں، بچے آتے ہیں اسکول سے چھوٹے، ادھر سے گزر کے جاتے ہیں، ان کے کپڑے خراب، صبح وقتی جاتے ہیں، پھر بچوں کو کپڑے خراب، کوئی واپس جا رہا ہے بچہ، کوئی کچھ ہو رہا ہے، تو بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ علاقہ مکینوں نے مستقل بنیادوں پہ سیوریج مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ ادھر ملتان کے حلقہ N157 میں سیوریج اسکیموں پہ کام جاری ہے۔ منصوبہ 17 کروڑ کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ تھیم آباد، باغواری، کھوکھرا والی بستی سمیت بڑی آبادی مستفید ہوگی۔ ملتان کے حلقہ N157 کے باسیوں کی سنی گئی۔ 17 کروڑ کی لاگت سے سیوریج سکیموں پر کام جاری۔ منصوبہ مکمل ہونے سے بہاولپور بائی پاس کی ارد گرد کی آبادی مستفید ہوگی۔ سابق UC چیئرمین امجد بھٹی کا کہنا تھا کہ عرصہ دراز سے سیوریج کے مسائل کا سامنا تھا۔ 3 فٹ چوڑی سیوریج لائن ڈالی جا رہی ہے، 10 بستیاں مستفید ہوں گی۔ الحمدللہ کہ یہ منصوبہ جو ہے ہمارا، یہ انشاءاللہ 2-3-4 ماہ میں مکمل ہو جائے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں دن رات کام ہو رہا ہے۔ میں اس کا کریڈٹ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو دینا چاہتا ہوں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ درینہ مطالبہ پورا کرنے پر وہ ممبر قومی اسمبلی زین قریشی کے مشکور ہیں۔ کوشش تھی ہماری یہاں پہ سیوریج کا کام ہو جائے، بڑے مسائل تھے ہمارے پانی کے، اور وہ اللہ کی رحمت سے اب وہ حل ہو رہے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب اور زین قریشی کا مشکور گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے علاقے کو آ کے سراہا ہے۔ سیوریج لائن سے تہیم آباد، باغ والی، کھوکھرا والی بستی مستفید ہوں گی۔ منصوبہ 3 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ 14 نمبر چنگی شریف پور ملتان کے باسیوں کو ملے گا سیوریج مسائل سے چھٹکارا۔ نئے ڈسپوزل اسٹیشن پہ کام تیزی سے جاری ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ جاوید اختر نے منصوبے کا جائزہ لیا۔ منصوبہ 12 کروڑ روپے کی لاگت سے 2 سال میں مکمل ہوگا۔ ملتان کے 14 نمبر چنگی شریف پورہ اور گرد و نواح کے سیوریج مسائل کا حل نکالنے کے لیے میگا منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ 14 نمبر چنگی پر نئے ڈسپوزیبل سینٹر پر کام کو تیز کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب جاوید اختر منصوبہ پر پہنچے اور کام کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر صورت عوامی سہولت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ یہ 3-4 یونین کونسلز ایسے ہیں جو کہ ڈپریشن میں ہیں، جو لو لائنگ ایریاز جس کو ہم کہتے ہیں، اور جب بھی کوئی بارش ہو یا کوئی سیوریج کے ایشوز ہو جائیں تو یہاں کئی دن پانی کھڑا رہتا ہے۔ تو یہ ہماری 117 ملین سے زائد کی اسکیم ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ کو بتایا گیا کہ منصوبہ 12 کروڑ روپے کی لاگت سے 2 سال میں مکمل ہوگا۔ عثمان بزدار صاحب کا اسپیشل فوکس ہے ڈیولپمنٹ کے اوپر، نئے ADP کے اوپر۔ یہ ہماری نئی ADP کی اسکیم ہے،
اس میں منظور آباد ہے, ہمارا انصار کالونی ہے, شہین آباد, بیوا پور, یہ سارے کافی بڑی آبادیاں ہیں. اور اس میں کچھ جیسے کچھ پہلے ریزسٹنس تھی, وہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس میں کافی محکمے کی ہیلپ کی اور یہ سارا جو ریزسٹنس ہے وہ ختم ہوئی ہے. منصوبے کا اسٹرکچر انجینئرنگ بنیادوں پر بنایا جا رہا ہے, جبکہ ڈسپوزل کے ساتھ پارک بھی بنایا جائے گا. ملتان کی اس درینہ مطالبے کو پورا کرنے کے بعد سیکرٹری ہاؤسنگ جوید اختر محمود نے از خود یہاں پر چکر لگایا اور اس 3 سالہ منصوبے کو 2 سال میں مکمل کرنے کی ہدایت بھی دی. کیمرہ مین نیم قریش کے ساتھ محسن و ملتان. ملتان میں تجاوزات مافیا کی اب خیر نہیں. ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان تجاوزات کے خاتمے کے لیے متحرک. ایم پی ندیم قریشی کے ہمراہ حسین آغاہی بازار کا دورہ کیا. خصوصی انسدادی کیمپ لگانے کی ہدایات بھی کر دی. ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان اور ایم پی ندیم قریشی نے گھنٹہ گھر اور حسین آگاہی بازار کا دورہ کیا. تاجروں کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی. انہوں نے میونسپل کارپوریشن کو تجاوزات کے مستقل خاتمے کا الٹیمیٹم دے دیا. حسین آگاہی اور گھنٹہ گھر چوک میں مستقل انسدادی تجاوزات کیمپ لگانے کی بھی ہدایت کی گئی. کچھ ٹیمپریری انکروچمنٹ ہے اس کو ختم کریں گے. ایک سیڑھیوں کی نشاندہی آج کی گئی ہے, تو انشاءاللہ اگلے 48 آورز میں اس کو ریموو کریں گے. پبلک ٹوائلٹس ادھر بنے ہوئے ہیں, ان کو ٹھیک کریں گے. امید ہے کہ یہ ہماری جو ایک مشترکہ کاوش ہے جس میں پولیٹیکل لیڈرشپ ہمارے ساتھ ہے, انجمن تاجران کے دوست ہمارے ساتھ ہیں اور میری ٹیم ہے, تو اگلے چند دنوں میں چند ہفتوں میں آپ کو حسین آگاہی ایک بدلا ہوا حسین آگاہی نظر آئے. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے. تاجر برادری تعاون کرے. ایم پی ندیم قریشی کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے وہ انتظامیہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ چونکہ گنجان آباد ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملتان کا سینٹرل پوائنٹ ہے اور ملتان ساؤتھ پنجاب کا سینٹرل پوائنٹ ہے, تو میری خواہش ہے کہ جب یہاں لوگ شہر کے مختلف حصوں سے شاپنگ کے لیے آئیں تو ان کو سہولیات وہی ملنی چاہیے جو لاہور کے ماڈرن بازار میں, جو اسلام آباد کے ماڈرن بازار میں. ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کے بعد تاجران نے رضاکارانہ طور پر تجاوزات ہٹانے پر اتفاق کیا اور مشترکہ لاہے عمل بنانے کی یقین دہانی کروا دی. کیمرہ مین ہارون کے ساتھ طیب سیف, ملتان. مظفر گڑھ میں فیاض پارک کی انتظامیہ کو آخر کار ہوش آ ہی گیا. شہر کے وسط میں موجود فیاض پارک کی تازہ آرائش اور صفائی کا کام شروع کر دیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ 1 ماہ سے صفائی کی صورتحال خراب تھی. مظفر گڑھ کی انتظامیہ خواب غفلت سے جاگ گئی. فیاض پارک میں صفائی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کام شروع کر دیا گیا. شہری کہتے ہیں کہ شہر میں سستی تفریح کی واحد جگہ فیاض پارک ہے. گزشتہ 1 ماہ سے یہاں صفائی کی صورتحال خراب تھی, مگر اب یہاں انتظامیہ نے پارک کی تزئین و آرائش کا کام شروع کر دیا ہے. پارک کے فوارے بھی چل پڑے ہیں. پچھلے منتھ جو گزرے ہیں بہت خراب تھی, لیکن جو آنے والا یہ منتھ سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں کافی بہتری ہے. انتظامیہ نے کافی خوبصورتی بڑھانے میں اضافہ کیا ہے اور شہریوں کو بھی چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں, گندگی نہ پھیلائیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ بڑی تعداد میں فیملیز سیر کے لیے پارک میں آتی ہیں. صفائی کی صورتحال بہتر ہوگی تو سب کے لیے اچھا ہوگا. پارک میں درختوں کی کٹائی بھی شروع کر دی گئی ہے. انتظامیہ کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کرنی چاہیے. اب دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ حالت بہتر ہو گئی ہے. گھاس کی کٹائی وقت پہ ہو رہی ہے, پانی بھی لگ رہا ہے اور بینچز کی صفائی ہو رہی ہے, کوڑا کرکٹ بھی نہیں ہے. فیملی کے لیے اب بہت اچھا ماحول بن چکا ہے. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ مزید جھولے لگائے جائیں تاکہ بچے بھی پارک میں انجوائے کر سکیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر, روہی, مظفر گڑھ. بات کریں گے عالمی وبا کے حوالے سے. جنوبی پنجاب میں کرونا کیسز میں اضافہ جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 113 کیسز سامنے آ چکے ہیں. بہاولپور میں 48, ملتان سے 24 اور سرگودا سے 1 کورونا کے 17 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ڈیجی خان سے کرونا کے 13, رحیم یار خان سے 7, بہاولنگر سے 4 کیسز رپورٹ ہوئے. ملتان میں مثبت کیسز کی شرح 5.3% ریکارڈ کی گئی ہے. جنوبی پنجاب میں کرونا آؤٹ آف کنٹرول. 5ویں لہر اسکولوں تک پہنچ چکی ہے. متعدد اساتذہ بھی متاثر. متعلقہ اسکول بند کر کے سیمپلنگ شروع کر دی گئی ہے. کرونا کی 5ویں لہر نے اسکولوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کوٹادو کی ٹیچر طاہرہ بطول میں وائرس کی تصدیق. گرلز ہائی اسکول چک 110 پیر رحیم یار خان کے ٹیچر رضیہ سلطانہ بھی متاثر. ان کی عمر 50 سال ہے. محکمہ صحت نے اسکولوں کو بند کر کے سیمپلنگ شروع کر دی ہے. رحیم یار خان کے باسیوں کو ملے گی اب مزید صحت کی سہولیات. شیخ زادہ اسپتال میں آرتھوپیڈک یونٹ 2 مکمل کر لیا گیا ہے. پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر طارق احمد نے افتتاح کر دیا. شیخزاد ہسپتال میں 30 بیڈز کا نیا آرتھوپیڈک وارڈ 2 مکمل. پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر طارق احمد نے افتتاح کیا. ان کا کہنا تھا کہ نیا یونٹ بننے سے آپریشن سمیت طبی سہولیات کی فراہمی بہتر ہوگی. آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ خاص طور پہ مین سفرر تھا. اس ساری جو شفٹنگ پلان ہے ہمارا
सर्जिकल टावर की वजह से हमारे पास जो ऑलरेडी डिप्लीटेड स्पेस थी उसमें मज़ीद कमी हुई और मरीज़ों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा था। तो उसमें फिर हमने बादिल नाखास्ता जो पुरानी बिल्डिंग है उसके कुछ हिस्सों को दोबारा रेनोवेट करके काबिल इस्तेमाल बनाया है। ऑर्थोपीडिक यूनिट जो है दिस इज द मेन सफरर ऑफ द कोविड-19। जब से कोविड-19 आया 2019 से ऑनवर्ड्स वी आर बीइंग शिफ्टेड टू डिफरेंट प्लेसेस। शेखजाद अस्पताल में सर्जिकल टावर की तामीर 2 साल में मुकम्मल होगी। इससे कबल नए वार्ड और यूनिट बनाकर तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। अब कुछ बात करेंगे खाद बहरान की। तो बहावलपुर में यूरिया खाद का बहरान जारी है। सिर्फ 2 बोरियां खाद मिलने पर काश्तकारों की खुशी का ठिकाना न रहा। जश्न मना, ढोल की थाप पर झूमर भी डाले। बहावलपुर में भी यूरिया खाद दस्तयाब नहीं। जैसे तैसे काश्तकार को कहीं से 2 बोरियां मिल गईं, जिस पर उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। जश्न मनाया और ढोल की थाप पर झूमर भी डाली। दस्तयाब हो चुकी है, बस हमारे ये करीबी है, इनको खाद मुनासिब रेट पे मिल गई है। हम हुकूमत के बहुत शुक्रगुजार हैं। फूलों के हार, ढोल की थाप और भंगड़े किसी बड़ी खुशी पर डाले जाते हैं। काश्तकार के अमल से इनकी खुशी और खाद के बहरान की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये खाद चल रही है और काफी किसान खुश दिखाई दे रहे हैं और किसान का कोई खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी है कि वो अब खाद सिर्फ 2 बोरियां मिलने पर किसानों के जश्न ने हुकूमती और इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। रहीम यार खान में सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर्स के लिए 3 रोज़ा तरबती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। पहले रोज डायरेक्टर जनरल FSC एंड RD इफाक अहमद ने सीड सैम्पलिंग, टेस्टिंग एंड क्वालिटी इंश्योरेंस के हवाले से आगाही लेक्चर दिया। रहीम यार खान में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड फेडरल सीड सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जेर एहतमाम 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप जारी है। मुल्क भर से 40 सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर्स शरीक हैं। पहले रोज DG FSC एंड RD इफाक अहमद ने सीड सैम्पलिंग, टेस्टिंग एंड क्वालिटी इंश्योरेंस के हवाले से आगाही लेक्चर दिया। एडवाइजर क्रॉप्स FAO डॉक्टर शकील अहमद खान, सीड सेक्टर स्पेशलिस्ट FAO मोहम्मद वहीद अनवर और डायरेक्टर FSC एंड RD नजर इकबाल ने भी सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर्स को आगाही दी। DG FSC एंड RD इफाक अहमद का कहना था कि सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर्स की तरबियती वर्कशॉप वक्त की अहम जरूरत है। 40 हमारे नए ऑफिसर्स जो हैं वो मुख्तलिफ हमारे जो मुल्क के मुख्तलिफ स्टेशन हैं वहाँ पे तैनात हैं। तो जब इनको 3 माह कब तैनात किया गया था तो उस वक्त भी हमने इनकी तरबियत का एहतमाम किया था। लेकिन चूंकि रहीम यार खान जो है वो सीड इंडस्ट्री का एक हब है, यहाँ कमोबेश 300 से 400 सीड कंपनियां और बहुत सारी फसलों के बीज यहाँ तैयार होते हैं। तरबियती वर्कशॉप से सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर्स की पेशा वराना महारत में निखार आएगा। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान आमद कमेटी के मेंबरान से खिताब किया। ताजरों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान आमद कहते हैं कोरोना के मुश्किल हालात में कारोबार चलाना काबिल इस्ताइश है। मुश्किलात में वो कारोबारी हजरात के साथ हैं। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बड़ा रिलीफ दिया गया। बिजनेस कम्युनिटी की अपनी इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करने की जरूरत है। अगर हम खासकर जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं उनको भी हमें ये बैकबोन होती हैं, तो इनको जब हम सपोर्ट करेंगे तो हम अपने मुल्क को सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तान में भी 8 साल में आपको मालूम है कि मेरा रिकॉर्ड है कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी के टैक्स से पूरा मुल्क चलता है, उन्हें हर तरह का रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करने का मतलब हुकूमत को सपोर्ट करना है। GST पर भी काफी लोग परेशान हैं, इस मामले को भी देखेंगे। मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी को हम क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। अगर उन्होंने गलत भी काम करते हैं तो उनको जुर्माना कर दो, उनको सजा दे दो, उनको ह्यूमिलेट ना करो। उनकी फैक्ट्री क्यों बंद करो? व्हाई यू वांट टू शट डाउन द फैक्ट्री एंड 500 जो वर्कर हैं उनको आप अनएम्प्लॉय कर दो। अगर फैक्ट्री के ऑनर ने कोई लॉ ब्रेक किया है तो उसको सजा दे। व्हाई और पनिशिंग द वर्कर? तो यहाँ तो ये होता है कि फलां हो रहा है जी, पूरी फैक्ट्री को बंद कर। गवर्नर पंजाब ने कमेटी मेंबरान और ताजरों के मुतालबात सुने और हल की यकीन दहानी करवा दी। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की रोही के रिपोर्टर अमजद मलिक पर हमले की मजम्मत। RPO मुल्तान को मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। कहते हैं वह जनूबी पंजाब सूबे के हक में है
अगर इनके बस में हो तो कल ही जनूबी पंजाब सूबे का गवर्नर लगा दे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने मुल्तान का दौरा किया। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि मीडिया पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। रोही के रिपोर्टर पर हमले की मजम्मत करता हूं। आरपीओ को मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत कर दी है। जो वायलेंस का और मीडिया पे जो वार है, उन पे अटैक का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और ये वाकया जो रूही के रिपोर्टर के साथ हुआ है, हम आरपीओ साहब से बिल्कुल कहेंगे कि जितनी जल्दी हो सकता है मुल्ज़मान जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान में मेरिट लाना आसान नहीं। लायक आदमी के लिए हमेशा मुश्किलात रहती हैं, जबकि नालायक आदमी सिफारिश की तलाश में रहता है। अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब की यूनिवर्सिटियां दुनिया की 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में आती हैं। मेरिट पाकिस्तान में लाना, मैं आपको सच बताता हूँ, आसान नहीं है। और मैंने एक जो मेरा तजर्बा है पिछले 8-9 साल से, कि जो लायक है, चाहे वो पुलिस अफसर है, चाहे वो डीएमजी का है, चाहे वो सहाफत में है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, जो अपराइट पर्सन है उसकी सिफारिश नहीं होती। चौधरी सरवर का मजीद कहना था कि मार्च नहीं, असल खतरा महंगाई और गुड गवर्नेंस है। पहले मरहले में जनूबी पंजाब और गुजरांवाला में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। रोही टीवी के रिपोर्टर अमजद मलिक की गाड़ी पर फायरिंग का मामला। मुल्तान की सहाफती और दीगर तंजीमें प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज रही। रोही के सीनियर रिपोर्टर अमजद मलिक की गाड़ी पर फायरिंग के खिलाफ एसोसिएशन ऑफ टीवी जर्नलिस्ट और मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुसलसल सहाफ़ियों के खिलाफ जो है वो एक महाज बनाया जा रहा है, और जिस तरीके से आप देखें कि ये सिलसिला शुरू हुआ है, इस्लामाबाद में धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर लाहौर में हसनैन शाह को कत्ल किया गया प्रेस क्लब के सामने, और कल रात अमजद मलिक पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। इन वाक़यात की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मुजाहिरीन का कहना था कि जो हादसा रोही न्यूज़ के रिपोर्टर अमजद मलिक के साथ हुआ वो कल किसी भी सहाफ़ी के साथ हो सकता है। सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा, मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। इस बात का सामने आ रही है कि सहाफ़ी जो कि आवाज़ उठाते हैं पब्लिक के लिए, उसके अलावा हुकूमत के इशूज़ पे और हर मामले पर सहाफ़ी फ्रंट लाइन पे होता है, लेकिन आज हमने देखा कि जो कुछ हो रहा है इस पर सब मजम्मत कर रहे हैं। सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में हमारी पुलिस को किरदार अदा करना होगा, हमारी हुकूमत को रोल अदा करना होगा। सुबह शाम तनकीद करते हैं, रोजाना कोई ना कोई इल्जामात सहाफ़ियों में लगाए जाते हैं, लेकिन ये भी देखा जाए कि फ्रंट पे कौन मौजूद है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि चाहे जितना जोर लगा लें वो डरने वाले नहीं, सहाफ़त की जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे DGPHA मुल्तान की नाक़िस कारकर्दगी पर जवाब तलबी। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर ने वार्निंग लेटर जारी करते हुए कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद ने DGPHA शफकत रजा को वार्निंग लेटर जारी कर दिया। सेक्रेटरी का कहना था कि सालाना तरक्याती स्कीमों, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और सेप स्कीमों पर काम सुस्त रवि का शिकार है। बात करेंगे पोलियो कैंपेन के हवाले से, तो पोलियो का खात्मा अब यकीनी है। मुल्तान जिला में 5 रोज़ा खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज तीसरा रोज़ है। 8 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का सिलसिला जारी है। पोलियो वायरस के खात्मे के लिए मुल्तान में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान 8 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया, जबकि 7 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। कतरे पिलाने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स बनाए गए हैं। हमारा टारगेट जो है, हर 5 साल से छोटा बच्चा जो किसी भी वजह से ट्रेन में सफ़र कर रहा है तो उनको हमने कवर करना है। ट्रेन से उतर रहा है, ट्रेन स्टेशन पर गुजर रहा है, ये हमारा टारगेट है। महकमा सेहत की जानिब से बच्चों को घर घर जाकर कतरे पिलाने का सिलसिला जारी है। टीमों का कहना था कि वालिदैन ताउन करें तो पोलियो का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह आने वाले कुछ दिनों में पोलियो हमारे पाकिस्तान से भी खत्म हो जाएगा। महकमा सेहत की इंसदाद पोलियो मुहिम अगले 2 रोज जारी रहेगी। रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है, कतर ने पाकिस्तान को वीज़ा फ्री एंट्री की लिस्ट में शामिल कर लिया है। पाकिस्तानी शहरी 30 रोज तक बगैर वीज़ा कतर में रह सकेंगे। कतर जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर आ गई। कतर हुकूमत की जानिब से 95 ममालिक के शहरियों को वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत फराहम कर दी गई है। पाकिस्तानी शहरी 30 रोज तक बगैर वीज़ा कतर में रह सकेंगे।
محکمہ اسکول ایجوکیشن متحرک सरकारी स्कूलों में माहाना वार टेस्ट शुरू हो गए। मुल्तान शहर में 2 लाख से ज्यादा बच्चे यकसा निसाब के मुताबिक टेस्ट दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों में माहानावार टेस्ट शुरू हो गए। 2 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात ने आज इस्लामियात का पर्चा दिया, जो यकसा निसाब के मुताबिक लिया गया। आज हमारा इस्लामियात का पेपर है, ये हफ्ता पेपर है। आज हमारे मंदरी टेस्ट है इस्लामियात के, उनका मंदरी टेस्ट है हमारा। आज हमारे इस्लामियात का पेपर है, पूरे हफ्ते पेपर अच्छे होंगे, इसलिए हमारी तैयारी अच्छी हो रही है। असातिज़ा का कहना था कि महकमा स्कूल एजुकेशन की हिदायत पर माहानावार टेस्ट लिए जा रहे हैं। इससे बच्चे नए पैटर्न को समझेंगे और इनकी फाइनल इम्तिहानात के लिए तैयारी भी बेहतर होगी। 50% कोर्स जो है हमारा इस इम्तिहानात में लिया जा रहा है। दिसंबर टेस्ट जो छुट्टियों की वजह से लेट हो गए थे, जनवरी में हमने रखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम गवर्नमेंट के जो SOPs हैं उसके मुताबिक जो है वो बच्चों के टेस्ट ले रहे हैं। सबने मास्क पहने हुए हैं। तलबा तालिबात का कहना था कि टेस्ट लेने से इनको फाइनल इम्तिहानात के लिए तैयारी करने में ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। कोरोना ने तलबा को किताबों से दूर कर दिया। हर कोई ऑनलाइन पढ़ने और असाइनमेंट बनाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगा है। ऐसे में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी ने तलबा को किताबों से जोड़ने के लिए 3 रोज़ा किताब मेला सजा दिया। कोरोना के बाद तालीमी इदारे खुले तो दीगर सरगर्मियां भी बहाल होना शुरू हो गई। बहाउद्दीन ज़किरिया यूनिवर्सिटी में 3 साल बाद किताब मेला सजा दिया गया, जहां इल्म के मुतलाशी तलबा की बड़ी तादाद अपनी पसंद की किताबें खरीदने पहुंच गए। उनका कहना था, अगर कुछ सीखना है तो किताब से बेहतर कोई और चीज नहीं। दौर इंटरनेट और बहुत सारी डिजिटल जो चीज़ें हैं उनका है, लेकिन दोबारा वो वक्त ज़रूर आएगा कि एक बार फिर हमें महसूस होगा कि जो चीज़ें हम छोड़ आए हैं उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल बुक्स हम भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हमने इसका जो एक क्या कहते हैं नुकसान था ना, जो हमने कोरोना के दौरान देखा, हमने यूज़ किया, सारा PDF सोशल मीडिया पे चला गई थी हमारी पढ़ाई, लेकिन उसमें बहुत सा हमारा नुकसान भी हो, क्योंकि जो चीज़ बुक्स देती है ना हमें, वो हमें सोशल मीडिया नहीं दे सकता। किताब मेले में 17 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिन पर मुख्तलिफ कैटेगरीज की सैकड़ों किताब नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। इस मौका पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना था कि किताब पर खर्च किया गया पैसा कभी जाया नहीं जाता। किताब आपकी जिंदगी बदलती है, मालूमात का खजाना रखती है। यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, सारी बुक्स बेस्ड है। हाँ, कुछ आजकल थोड़े एंगल चेंज हो गए, लैपटॉप आ गए, लेकिन बात तो फिर वही बुक की है। तो बहुत बड़ा प्यारा इवेंट है और इंशाल्लाह ये इवेंट होंगे। वाइस चांसलर का कहना था कि इंटरनेट से मालूमात मिलती है, मगर वो किताब का नेमुल बदल नहीं। किताब को हाथ में थाम कर उसके वर्क पलटने में जो लुत्फ है वो लैपटॉप में रिसर्च करते हुए नहीं मिलता। मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट की दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है जो अपनी मौजूदगी जाहिर करती रहती है, और वो है किताबों की दुनिया। तलबा को कोरोना के बाद एक दफ़ा फिर से किताबों के साथ जोड़ने के लिए बहाउद्दीन ज़किरिया यूनिवर्सिटी में किताब मेला जारी है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान में फिजिक्स डिपार्टमेंट के तलबा के प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की गई। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स की नुमाइश सजाई गई। फिजिक्स डिपार्टमेंट के तलबा ने सिक्योरिटी सिस्टम और रोजाना की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए ऑटोमेशन और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से प्रोजेक्ट्स पेश किए। इनका कहना था कि प्रोजेक्ट्स बनाते वक्त माशरती जरूरियात को मद्देनजर रखा गया है। मेरे जो है वो बेसिकली 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक है अर्थक्वेक डिटेक्टर और दूसरे में बेसिकली 2 अलग अलग आइडियाज है जो मैंने एक ही जगह पर मतलब कंबाइन किए हुए हैं। एक्सीडेंट प्रिवेंशन डिवाइस है, रोड एक्सीडेंट प्रिवेंशन डिवाइस, और इसके अलावा इसके साथ स्पीड ब्रेकर फ्री एनर्जी जनरेशन है। मैंने इलेक्ट्रोस्पिनिंग का सेटअप बनाया है। ये बेसिकली एक टेक्निक है सिंथेसिस के लिए नैनो फाइबर्स की। इसके आगे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मेडिकल की फील्ड में इसकी एप्लीकेशंस हैं, मेडिकल टेक्सटाइल में इसकी एप्लीकेशंस है, उसके अलावा इसका कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो ये बेसिकली एक रिसर्च का मेरा प्रोजेक्ट है। मैं MS की स्टूडेंट हूँ। आज ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद जो तलबा की सलाहियतें हैं उनको भरपूर तरीके से पेश करना है और बताना है कि हम इस तरह भी जो काम है, छोटे से छोटे प्रोजेक्ट और बड़े से बड़े प्रोजेक्ट किस तरह कर सकते हैं। प्रोजेक्ट से ये साबित होता है कि तलबा मुस्तकबिल की जरूरतों के हवाले से मुकम्मल तैयार है। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान।
मोहम्मद नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी का दूसरा कॉन्वोकेशन गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का दूसरा कॉन्वोकेशन हुआ। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी, सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, MPAs वासिफ राह और सलमान नईम, वाइस चांसलर BZU डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी, VC वुमेन यूनिवर्सिटी और दीगर शख्सियात शरीक हुए। गवर्नर पंजाब का कहना था कि असातिज़ा तालीम के साथ साथ तलबा की किरदार साजी भी करें। उनका कहना था कि इंडिया और बांग्लादेश की मुखालफत के बावजूद GSP+ हैसियत हासिल करना बड़ा चैलेंज था। हुकूमत की ये भी अव्वलीन कोशिश है कि ज़रूरी पैदावार में इजाफा और मुतअल्लिका अदारों के जरिए मार्केट से बेहतरीन राब्ता मुमकिन हो। इस मकसद के हसूल के लिए हुकूमत अदारों को मजबूत बना रही है। सूबाई वज़ीर ज़राअत का कहना था कि माजी की गलतियों की वजह से कपास को नुकसान पहुंचा, लेकिन अब व्हाइट गोल्ड की वापसी का वक्त करीब है। जो माजी की कोता अंदेशी की वजह से जो कपास की फसल को नुकसान पहुंचाया गया है, हम कोशिश करेंगे कि हम कपास की फसल को उसी आबोताब के साथ रिवाइव करें जैसे किसी ज़माने में इसे वाइट गोल्ड, पाकिस्तान का वाइट गोल्ड कहा जाता था। VC ज़राई यूनिवर्सिटी का कहना था कि इंटरनेशनल रैंकिंग में पहली पोजीशन वज़ीर आज़म के क्लीन एंड ग्रीन विजन पर काम करने का वाज़ेह सबूत है। दूसरे कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब ने बेहतरीन कारकर्दगी वाले ग्रेजुएट्स में मेडल्स और डिग्रियां तकसीम की। कैमरामैन अजीम सागर के साथ अली रियाज, मुल्तान। तो नाज़रीन, आपने गोल, चकोर या बल वाले पराठे तो खाए होंगे, मगर मुल्तान के शहरी ने पराठों की ऐसी किस्म मुतारिफ करवाई है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट में ये मुलाजा कीजिए। आलू वाला पराठा, चिकन वाला और अंडे वाला पराठा तो खाया होगा। आइए आज आपको दिखाते हैं मछली वाला पराठा। अब गोल रोटी और पराठों का जमाना हुआ पुराना। कोयटा से मुल्तान आए पठान ने अनोखे अंदाज और अशकाल के पराठे मुतारिफ करवा दिए। इन पराठों को देखकर लगता है गोया किसी आर्टिस्ट ने इन्हें कमाल महारत से बनाया हो। जायका ऐसा कि खाने वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं। मछली वाला पराठा देना एक। मैं बड़ी दूर से आया हूँ और मैं इधर काफ़ी अरसे से आ रहा हूँ। मुझे इनका म्यार बहुत अच्छा लगा है। इनके पास डिफरेंट किस्म के पराठे मिलते हैं। चाय इनकी बहुत अच्छी है और बहुत मज़ा आता है इधर आके। मुल्तान के होटल पर मछली और मुर्गी की शक्लों वाले पराठे खासे मशहूर हैं। कारीगर का दावा है कि ऐसे पराठे पूरे शहर में कहीं और दस्तयाब नहीं। आटे और मैदे से तैयार होने वाले इन पराठों को दिलचस्प शक्लों ने खास बना दिया है। ये वाला पराठा, मछली वाला पराठा, मुर्गी वाला पराठा। ये स्पेशल पराठे हमारा होटल में, ये पूरा मुल्तान में नहीं मिलता है, सिर्फ हमारा होटल में मिलता है। ये मछली वाला पराठा मिलेगा और आलू पराठा मिलेगा, इसमें मुर्गी वाला पराठा भी मिलेगा। सर्द मौसम में चाय के साथ गर्मा गर्म पराठे खाने का अपना ही मजा है, लेकिन जब इतनी सजावट के साथ पेश किए जाएं तो खाने का लुत्फ दोबाला हो जाता है। मुल्तान शहर में इन मुख्तलिफ अशकाल के पराठों की धूम मची हुई है, जिन्हें खाने के लिए शहरी दूर दराज से इस होटल का रुख कर रहे हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ अपनी स्टूडियो से फिल वक्त